اچھا ان کے لیے نا تھوڑا فیس بنانا پڑتا ہے, وہ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس باتوں کو کہ بھائی جب کسی بندے کی آواز نکلتی ہے تو فیس بنتا ہے. اچھا لوگوں کو ہنسی بھی آ جاتی ہے یار یہ کیا مطلب, لیکن بھائی جو جس اور تو بہت بڑی پاور ہے اور تو میں نہیں انداز ہے. وعدہ کر لیا ہے مجھ سے آن ایئر, کر لیا نا؟ بالکل بالکل آپ میری ٹیم کا حصہ ہیں. بالکل ہے, آپ نے بس وعدہ کیا آپ حکم کریں ہم حاضر ہیں. نہیں یہ محبت ہے آپ کی زعیم. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم ویورز کے لیے اس طرح کی اور کرتے رہیں گے, جس سے میرا بھائیو اللہ نے تیرا کروڑ بھائی ساتھ بتائیں گے. بہن نے پوچھیں گے اسلام میں قتل کیوں جا دیں گے, تو بھائی صاحب اسلام تو کہتے ہیں گے ایک آپ کے دو جوانوں جو ہے وہ شخصیت ہے وہ, اور بہت سارے ایسے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں جن پہ انہوں نے ملینز اور بلینز ویوز آئے, اور پاکستانی بہت سارے ایسے چینلز ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے انٹرویو بھی دیے. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے درمیان موجود ہیں زعیم رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ پہلے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ. اچھا بھائی میرا یہ بھائی آپ نے کہا نا کہ میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ٹیم ممبر ہوں, تو میں تھوڑا پریکٹس کر لوں, تو پہلے دن ہی آپ ٹیم ممبر ہو جائیں گے. تھوڑی سی جو ہے نا وہ میں بھی سیکھ لوں گا آپ سے. کیا بات ہے کیا بات ہے. نہیں مطلب میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ویورز کو تھوڑا میں بتا تو دوں نا کہ زعیم رضا جو ہے وہ ممکری کرتے ہیں, اور آپ یو جسٹ نیم اٹ, اور آپ ان کو صرف نام بتائیں کہ کس کی میمکری کرنی ہے, اور یہ بالکل جو ہے نا وہ آپ کو اگر 100% نہیں تو 95% 90% بالکل اسی بندے کی آواز. اور یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے, ڈیفیکلٹ, اور اس کے اندر جو ہے نا گلے کا بڑا استعمال ہوتا ہے, کیونکہ میں بھی تھوڑی بہت وائس اوور کرتا ہوں, تو بڑا اس میں کوئی بندہ جو ہے نا وہ دل سے آواز نکالتا ہے, کوئی جو ہے نا وہ سینے سے آواز نکالتا ہے, کوئی پیٹ سے آواز نکالتا ہے, کوئی حلق سے نکالتا ہے, کوئی نوزل یوز کرتا ہے, اور بڑی ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس کے اندر. کارٹونس میں اکثر جو آپ بچوں کے جو کارٹونز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جو آپ وائس اوور سنتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو ایڈورٹیزمنٹ کے پیچھے, ایڈورٹائز کے پیچھے جو ایڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی وائس اوور جو ہوتی ہیں, الگ الگ طرح کی وائس اوورز ہوتی ہیں, تو بڑا ڈیفیکلٹ یہ کام ہوتا ہے. تو زعیم رضا ہمارے درمیان موجود ہے. احسن بھائی جی سر, تو آپ کے سامنے زعیم بھائی کا ایک ہم نمونہ بھی لے لیتے ہیں وائس اوور کا, لیکن پہلے زعیم بھائی سے کچھ باتیں ہو جائیں. زعیم بھائی کیسے ہیں آپ یہ بتائیں. میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو زعیم بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا, بچپن سے یا کسی سے انسپائر ہوئے آپ, یہ کیا ہوا؟ انسپائر تو ہوا تھا جب جو ہے نا بچپن میں ہوتا یہ تھا کہ والد صاحب جو ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان لگا دیا کرتے تھے. اچھا. وہ ریڈیو اس ٹائم جو ہوتا تھا وہ سنتے تھے ہم ریڈیو میں. ٹھیک ہے. وہ سنتے پھر ایسا ہوا کہ پھر ہم جو ہے نا ٹی وی چینلس پہ دیکھنے لگے. ٹھیک ہے. کہ بھائی وہ صبح ان کا بیان آ رہا ہوتا تھا, تو میں وہ بھی سن رہا ہوتا تھا, اور کافی جو ہے نا اثر ہے ان کی آواز میں, ان کے بیان میں. ٹھیک ہے. تو اب وہ ہوا یہ کہ مجھے ایک دن شوق ہوا کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا کہ یار اتنے لوگوں میں بیان کر رہا ہوتا. میں نے سوچا یار اللہ کاش مجھے بھی ایسی آواز مل جائے, اور مطلب وہ ایک پرسنالٹی بن چکے تھے میرے لیے, آئیڈیل بن رہے تھے آہستہ آہستہ. تو میں نے سوچا کہ کاش میرے میں یہ ہوتا. تو ان کی آواز سن کے نا میں پھر وہ سب سے پہلے وہ سلام کیا کرتے تھے کہ وہ السلام علیکم. میں آپ کو بھی کر کے دکھاؤں گا. اس سے پہلے میں ویورز کو کچھ بتا دوں. اچھا یہاں پر ہم جتنی بھی میمکری کریں گے اس کا ہرگز مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو ٹیز کرنا نہیں ہے. یہ جسٹ فار ہم جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں, اور اس میں صرف مزاح شامل ہے, طنز شامل نہیں ہے کہ ہم کسی کو جو نا ٹیز کر رہے ہیں. صرف مزاح کہ ایک انسان ہے, اس کی آواز ایسی ہے, اور جب کوئی دوسرا انسان اس کی آواز نکالتا ہے تو ایک حیرت کی بات ہے. تو ہم اس طرف چلیں گے, بہت ساری وائسز سنیں گے, اور اب تو آپ سے محظوظ ہم ہوتے رہیں گے. تو سب سے پہلے ابھی جو آپ نے نام لیا, ہمارے پاکستان, ملک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے مولانا طارق جمیل, تو ان کی آواز ہم آپ سے سنتے ہیں. تھوڑی سی جو ہے نا وہ ڈیلے لائٹ بڑھا دیے گا اور آڈیو تھوڑی سی بڑھا دیے گا. جی مولانا طارق جمیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحیو میرے تمام بزرگوں, ساتھیوں, جوانوں, میری ماؤں بہنوں, پابند بن کر چلو اس اللہ کے جس کی بادشاہی ہے, جس نے زمین کو بچھایا ہے
आसमान को उठाया है, आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्जे में है, ज़मीन का फर्श मेरे अल्लाह के कब्जे में है। ओए हाय 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 मेरा भाइयों मेरा भाइयों मेरा भाइयों, अल्लाह ने 13 करोड़ लाइटें इस आँख में लगाई हैं, 13 करोड़ लाइटें इस आँख में लगाई हैं। एक कबिल मांगा है हराम से बचो, हराम से बचो, हराम से बचो। मेरा भाइयों, अल्लाह के बेहद एहसानात हैं। एक बदू नबी के पास आया, पूछा या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत में घोड़े होंगे? आपने कहा हाँ घोड़े होंगे, मगर चलते नहीं होंगे, हवाओं में उड़ने वाले घोड़े होंगे। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जन्नत बनाई है, क्या बताऊं मेरा भाइयों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये वही रास्ता है जो सहाबा ने अपनाया है, जो नबियों ने अपनाया है। यही रास्ता तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे माशाल्लाह खुद वो इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं कि कोई ऐसा शख्स नहीं है कि हाँ, जो उनको जानता ना हो बिल्कुल, और उनकी बिल्कुल। बयानात ना सुने हो। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अजीम हस्ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे आपने बताया कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे जो है ना नाराज होते हैं, जी, जी, वो जी, कहते हैं कि यार तुम्हें इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं, हम हालांकि मजाक मजाक कतई काफी नहीं टाइम बचपन से सुनते हुए आते अब वो चीज़ आई है। अभी भी मैं समझता हूँ कि वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए थी। वो बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है 100% जो होनी चाहिए थी। लेकिन ये कि अल्लाह का फजल है, किसी को ऐसा होता है कि कोई बोल नहीं पाता बेचारा, लेकिन कोई ऐसा होता है अल्लाह पाक ने उसको इतना वो दिया होता है टैलेंट के वो कितने लोगों की आवाज़ निकाल सकता है। और सॉरी कता कलामी की माजरत, हमारे जो वजीर आजम थे साबिक, तो उनकी भी माशाल्लाह आप आवाज़ निकालते हैं। तो कम तो आप भी नहीं है माशाल्लाह। ये अपने जिनका तारुफ मैं कराऊंगा कभी प्रोग्राम में नहीं ये भी है ना 3600 आवाज़ें निकालते हैं। नहीं, तो ये भी एक वक्त में जो है हम इनको अपना उस्ताद मानते हैं कि ये भी जो है वो उस्ताद है हमारे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो इमरान खान का गुम कर रहे हैं आप? जी जनाब, अच्छा उनके लिए ना थोड़ा फेस बनाना पड़ता है। वो तो ये आप समझ सकते हैं इस बातों को कि भाई जब किसी बंदे की आवाज निकलती है तो फेस बनता है। अच्छा लोगों को हंसी भी आ जाती है कि यार ये क्या मतलब नहीं, लेकिन भाई जो जिस बंदे को जो करता है उसको पता होता है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। तो उनके लिए फेस बनाता हूँ थोड़ा कि ओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ओ मेरी कौम के नौजवानों, और तुम्हें अल्लाह ने शायरों जैसे पढ़ दिया है और तुम चेटियों की तरह और जमीनों पे क्यों रह गए हो? और तुम में बहुत बड़ी पावर है और तुम्हें नहीं अंदाजा है। ये कौम, इस कौम का एक एक बच्चा, मैं आपको बताऊं, एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई पीछे हाल की बात है। वो बहुत टैलेंटेड बच्चा था, अब वो रेडी लगा रहा है। इस सब का कसूरवार कौन है? और मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे करप्ट लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने टैलेंट को पहचाने, अपने आप को पहचाने। इस मुल्क का बच्चा बच्चा भी रोना चाहिए, इस मुल्क का बच्चा बच्चा भी रोना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कुव्वत बनाने लगे। आप मेरे साथ देंगे, आप देंगे मेरे साथ। जी बस ये बंद करें, फिर अभी आप निकलते हैं इंशाल्लाह। क्या बात है ज़हीम भाई, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और ज़हीम भाई, जो आप समझते हैं कि यार ये वाली जो वोकल है, ये वाली जो वॉइस ओवर है, ये मुझसे बेस्ट तो कोई निकालता ही नहीं है, वो वाली थोड़ी सी हो जाए। एक है जो मैंने जो है ना काफी लोगों से सुना के लोग कहते थे कि भाई वो तारिक जमील साहब की तो सब कर लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो जाकिर नाइक की आप करते हैं ना वो बड़ी कमाल है। तो मैं कहता हूँ भाई शुक्रिया। तो मैं भी वो भी करके दिखा देता हूँ आपको कि उनसे किसी ने पूछा कि भाई उनसे, उनका सेगमेंट ऐसे ही होता है कि भाई लोग पूछते हैं आवाम में से कि भाई वो कत्ल क्यों जायज़ है इस्लाम में, यही वो। तो उन्होंने एक जवाब दिया, मैं सुन रहा था तो वो मैंने याद कर ली वो चीज़। तो कहते हैं कि भाई साहब इस्लाम में कत्ल कहीं भी नहीं जायज़ होंगे। भाई साहब को सवालेंगे, बहन में पूछेंगे इस्लाम में कत्ल क्यों जायज़ होंगे, तो भाई साहब इस्लाम तो कहते हैं अगर एक इंसान का कत्ल करते हैं तो पूरे इंसानियत से कत्ल करते हैं। इस्लाम में भी कहते हैं कि अगर आप एक इंसान की जान बचाते हैं तो पूरी इंसानियत की जान बचाते हैं। तो इस्लाम तो कहीं से कहते नहीं है कि आप किसी का कत्ल करें,
बल्कि इस्लाम के साथ सबकी जान बचाए, एक जानवर भी हो तो आपको उसकी भी जान बचानी होंगे। होल्ड ऑन टू द क्वेश्चन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। और ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि एक ही गले से आप जो है ना वो डिफरेंट हाई नोट पे फिर लो नोट पे, अल्लाह और पाक जो का है ना कमाल वो- है कि अल्लाह पाक ने माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान जबरदस्त। अल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह ने बिल्कुल क्या बिल्कुल। बना दिया है। मैं बिल्कुल, तो बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। वो होता हूँ, अपने आप को समझता हूँ कि मुझ में ऐसा क्या था कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दिलवा दी। क्या बात है, क्या बात मतलब है। कुछ भी नहीं हूँ मैं, खाक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी जो हमारे वजीर आज़म हैं, फिर जो अभी हैं इक़्तिदार में हैं, तो उनकी भी हम आप चाहते हैं थोड़ी सी दे लें, फिर मैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं माज़रत चाहता हूँ कि आज की ट्रांसमिशन थोड़ी सी लेट हो गई, कुछ मसाइल थे टेक्निकल, वरना ये सेगमेंट बहुत उनकी जो अच्छा है ना करते हैं। छोटा सा बस करेंगे, फिर हम नात की तरफ चलेंगे। वो अक्सर जो उनका एक बड़ा मशहूर जो था ना क्लिप, वो वायरल हुआ था कि मेरे भाई आप मेरे साथ लाहौर चलें, आप पंजाब चलें, मैं आपको बताऊंगा खिदमत का स्टैंडर्ड क्या होता है। मेरे भाई लाहौर की टूटी सड़कें आपको कराची में नहीं मिलेंगी, कराची की बनी हुई सड़कें आपको लाहौर में कहीं नहीं मिलेंगी। आप अभी मेरे साथ लाहौर चलें, अभी उठें, लाहौर चलें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे। अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज़ईम ने ये वादा कर लिया है मुझसे, ऑन ईयर कर लिया ना? बिल्कुल बिल्कुल आप मेरी टीम का हिस्सा हैं? बिल्कुल है। आपने बस वादा किया, आप हुक्म करें, हम हाजिर हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मोहब्बत है आपकी ज़ईम। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम व्यूवर्स के लिए इस तरह की और करते रहेंगे, जिससे अवेयरनेस की एक फ़िज़ा कायम हो, मैसेज हम दे सकें लोगों को। तो हमारे शुरू कर दिया, और मज़ीद चीज़ें जैसे कि आज जो है ये ज़हीम मतलब रज़ा। एक ज़हीम रज़ा साहब की जो है ना एक अलग चीज़ हमें देखने के लिए मिली, हमारे व्यूवर्स को देखने के लिए मिली। तो इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ीद, मुझे अंदाज़ा है कि आप ऐसी और मज़ीद जो है ना क्रिएटिव चीज़ें जो है ना वो लेकर आने वाले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इंशाल्लाह। तो ज़हीम रज़ा साहब एक और शख्सियत हैं, शेख रशीद, तो उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं, या उनकी वोकल आप कर लेते हैं? तो थोड़ा सा अगर उस तरफ हो जाए, क्योंकि अब लास्ट मराहिल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक गुड नोट पे, एक मुस्कुराते जी। हुए जो है ना वो हम छोड़ के जाएं अपने व्यूअर्स को, ताकि कल फिर वहीं से जो है ना वो एक सिलसिला शुरू हो। उनकी जो है ना वो इतना मैं उनको सुनता नहीं था, अच्छा। लेकिन जो मतलब न्यूज़ पे चल गया वो सुन लिया तो सुन हाँ, लिया। कोई इशू नहीं तो है। उसमें वो अक्सर वो बिलावल साहब को कर रहे होते थे कि अच्छा, हाँ। और देखें जी ज़्यादा का ताल्लुक है जी शेख रशीद का, तो देखें जी शेख रशीद जो है वो उड़ते चिड़ियों के भी पार गिन लेता है। और कभी आप जो है वो लाल वैली पे तशरीफ़ लाएँ तो देखें जी बात सारी है कि अभी तुम जो है वो बचे हो, और तुम पे इतना वो नहीं कि तुम जो है वो अब से हमारे मुकाबले में आओ। तो देखें जी बात ये है कि प्रोफेशनल जो है वो लोग हैं, तो देखें जी, देखते रहें जी प्रोग्राम को जी, बिल्कुल देखते रहें जी। वाह वाह वाह, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी और है। अच्छा चल जाता है वो, बिल्कुल चलते ही रहता है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसी के बीच में आपने एक नाम लिया, ठीक है, वो ठीक है, वो तो जान होते हैं मिमिक्री में, जो मिमिक्री आर्टिस्ट तो उनकी जान होते हैं। थोड़ा सा अगर वो भी हो जाए तो लास्ट रोड पे फिर हम जो है ना इसको मेरे कोप के दो जवानो बुच्चों के प्यारे प्यारे जियालो, पापा के मत वालो, मेरे पापा ने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं, जिसमें से आलू प्याज के रेट बहुत हाई हो गए हैं। आलू 10 रुपया दर्जन, प्याज टमाटर 100 रुपया किलो, अंडे 100 रुपए दर्जन। मेरा ये सवाल है कि इमरान अंकल आपने पाकिस्तान के लिए क्या किए हैं? बहुत आला, ओ बहुत आला। बिलावल, ओ जरदारी,
अल्लाह के वास्ते और तुम अपने बच्चे को उर्दू तो सिखा दो। ये वो कमेंट करता क्या है। क्या बात है ज़हीम भाई, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह प्रॉपर इसको प्रिपेयर करेंगे और एक स्क्रूटनी भी करेंगे इसकी, और ताकि एक फ़िल्टर से भी गुजारेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारा एक मेयार है, हमारा एक लेवल है, तो हम अपने ऑडियंस को बिल्कुल वो चीज़ नहीं दिखाएंगे जो थोड़ा सा अलग हो। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह हम एक स्टैंडर्ड की लेवल की कॉमेडी करेंगे इंशाल्लाह, और जिससे जो लोग महसूस भी हों और उसमें मज़ा भी हो और लोग एंजॉय भी करें। मैं आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से भी, और अब आप इंशाल्लाह पार्ट भी बनने वाले हैं हमारी इस टीम का, तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तहे दिल से अगेन ममनून मशकूर हूँ कि आप आए हमारी इस ट्रांसमिशन में, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों नामखानों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और व्यूवर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और एहसन भाई आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। माशाल्लाह आप बहुत प्यारे लग रहे थे आज, बहुत अच्छे लग रहे शुक्रिया हैं, ठीक है, शुक्रिया और इसी तरह आप अच्छे लगते रहें, और यहाँ जो है वो आ जाएं और संभाल लें कुर्सी, ये आपकी जो हॉट सीट है आपका इंतज़ार कर रही है, और होस्टिंग के फ़राइज़ मेरे साथ जो है वो को होस्ट के फ़राइज़ अंजाम देते रहें।